Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Application of genetical engineering. There is the most important topic here. Application of genetical engineering. A protein. First of all here, a protein manufacture. The protein manufacturers, you will be recall from the earlier section of this lesson, that is a bacteria and the yeast has been to use for the century and produce cheese and alcohols, and more recently is antibiotics, and currently is a plasmid and bioengineering. Bacteria carry some human genes, and these genes are expressed to give a large quantity of human proteins which are clinically useful. The development of the recombinant DNA technology and gene cloning has generated a new industries of manufactured protein. Earlier valuable protein could be obtained from eukaryotes is a small amount of the heavy expansion. But now this can be produce a large quantity. For example, until some time back, a growth hormones was available on a tiny amount was extremely expensive as is to be extract for endocrine gland and contain animals. Friend, here is most important for the protein manufacture. Protein manufacture is the most important for the human DNA technology. There is the important for the all animals. Today, it can be made available in the large quantity through the recombinant DNA technology. In 1982, production of the human insulin became a first commercially success of DNA technology. There is the most important for the manufacture of insulin. The insulin is the most important technique of DNA technology in is proposed by 1982 the production of the human insulin. And there is a cerebral protein of therapeutics of medicals value which is available now through the recombinant DNA technology. And these are cloned human genes product approved for us to begin to development and following table give to the names and use of some these. There is a most important table here given. Here show the name of the protein and their uses. There is the most important here. The first of all here is the protein and they are used in. There is insulin first. Insulin. The insulin has a use diabetes mellitus. There insulin is a diabetes mellitus disease, and the growth hormone the pituitary diabetes. There is a growth hormone is a pituitary that of film is used, and erythropoiesis is anemia. Erythropoiesis is anemia, and the interferons is used the viral infection. And the hair interleukin 2 is the used the cancer, and the sixth here is the clotting factor 8. Clotting factor 8 is the hemophilia A used by hemophilia A, and the clotting factor is a 9 is used by hemophilia B, and the monoclonal antibodies is the infection disease, and tissue is a plasminogen factor is a heart attack. There is a most important for here the use of protein in their hair. There is the most important second point that enzymes have also been to the produced from the cloned genes. For example, here the table, the name of such enzymes are their use. There is the most important here the enzyme and use in. There are name of enzyme and their use. The protease. The protease is the manufacturer of the detergents and mental tenderizer, and the more important there is a meat tenderies and detergent, and amylase here a manufacturer of the beer, bread and textile, and glucoisomerase is here. Glucoisomerase is here to make a corn syrups which is sweeter than to the sucrose and used to flour soft drink. There is use of enzyme and the use. They are most important. Enzyme are as a phrases and has to be interpreted in the gels and the encapsulated in the small artificial cells. The next here antibiotics. Antibiotics is the most important
Since the discovery of penicillin in 1920s, the more than 6,000 antibiotics has been to exploited from a various microorganisms and have resulting in the emergence is the improvement of human health. Research in the progress of genetically engineering biosynthetics and pathway from the synthesis of antibiotics. The novel antibiotics has been be obtained from through the genetical is manipulations. There is most important. There is a novel antibiotics is obtained from genetical manipulations. And the eighth list is the 4 point is the vaccine. The vaccine here is the most important for the biotechnology. There is a bioengineering. The vaccines has been developed from the rabies and hepatitis B. There rabies and hepatitis B. A gene for a genetic protein is inserted into a plasmoid and bacteria containing a recombinant DNA then generate is a large quantity of protein. The protein is added to be a vaccine antibody immediately from or against the antigen when vaccinated. तो यहाँ पर बात अगर हम करें कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आनुवांशिक अभियांत्रिकों के उपयोग के विषय में करें चर्चा तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट है कि क्लास को बच्चों के लिए भी है, तो ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ अनुप्रयोग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये बेनिफिशियल में नहीं है, बेनिफिशियल में आता है। अनुप्रयोग का मतलब ही होता है यूज़फुल, ठीक है। तो ये आपके पहला सा कन्फ्यूज़न, आपको इस बात को दूर करना पड़ेगा कि अनुप्रयोग का मतलब होता है उपयोग, वहाँ एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या आता है, सबसे पहले हम देखा जाए तो प्रोटीन के निर्माण, देखिए यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में। कहते हैं इस अध्ययन में अगर हम बात करें तो हमने बहुत कुछ जाना है कि जीवाणु और खमीर शताब्दियों से जो है पनीर, अल्कोहल आदि बनाने में प्रयोग किए जा रहे हैं और किए भी जा रहे हैं, और कुछ जो समय पूर्व से जो है एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इसका प्रयोग बहुत किया जा रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जैव अभियांत्रिक जीवाणुओं में विद्वान में जो है प्लाज्मिड्स कुछ जो है मानव जीनों का वाहक है, जो बड़ी मात्रा में जो है मानव प्रोटीन प्रदान भी करता है और ज़रूरी भी रहता है, जो नैदानिक रूप से जो है महत्वपूर्ण है। कहते हैं पुण्य युगल डीएनए जो है औद्योगिक जीन क्लोनिंग के विकास से प्रोटीन निर्माण के लिए नया जो उद्योग भी स्थापित किया गया। देखिए कहते हैं ना, जीन क्लोनिंग जो बात आई वो काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि इससे जो था बायोटेक्नोलॉजी की और भी जो है रास्ता खुल गया। पहले उपयोगी जो है प्रोटीन जो है अम्ल मात्र व भारी कीमत में जो है यूकैरियोटिक्स के से प्राप्त किए जा सकते थे, यानी यूकैरियोटिक सेल से जो है इसको प्राप्त करना आसान था। लेकिन जब इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ समय पूर्व तक जो है बुद्धिकारी हार्मोन बहुत अल्प मात्रा में भारी कीमत पर प्राप्त होती थी, क्योंकि इसे जो है अंतस्वेदी ग्रंथि से निकाला जाता था। आज इसे जो है पुनर्योगन डीएनए जो है प्रौद्योगिकी द्वारा भारी मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है। और कहते हैं 1982 में देखा जाए तो मानव इंसुलिन का निर्माण जो है पुनर्योगन डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रथम व्यापारिक सफलता बनी। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने कई मायनों में इंसानों के जो है कार्य को बहुत आसान बना दिया। पहले अगर हम बुद्धि हार्मोन की बात करें तो जो ग्रोथ हार्मोन थी उन सबको बनाने में साइंटिस्टों को बहुत ही झंझटों का सामना करना पड़ा, और वो बहुत ही कम अमाउंट में बनाते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी अगर हम हार्मोन बनाते हैं तो हम किसी न किसी व्यक्ति के अंतस्वेदी ग्रंथि से ही उसको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज थी कि ऐसा कैसे संभव रहेगा, और ये बहुत काफ़ी कॉस्ट पे ही प्राप्त होती थी। लेकिन जैसे हमारा ये है यहाँ पर कहते हैं कि जीन क्लोनिंग्स हुई और जो बायोटेक्नोलॉजी ने अपना कदम बढ़ाया आगे, तो हमें बहुत कुछ जो है बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन करके हमने इसको बहुत अधिक जो है निर्माण करवा लिया। अगर बात यहाँ किया जाए इंसुलिन की, तो इंसुलिन भी कुछ इन्हीं में से था। जो इंसुलिन पहले इतना आसानी से उपलब्ध नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है बायोटेक्नोलॉजी ने अपना तरक्की करके इसका बहुत अच्छा उपयोग भी सिद्ध किया। अगर बात करें पुनर्योगन डीएनए औद्योगिक की सहायता से अब चिकित्सकारी महत्व कई प्रोटीन प्राप्त हुए हैं, और ये क्लोनित मानव जीन उत्पादन जो उपयोगी परिकल्पना के लिए हो सकता है। कहते हैं कि अगर देखा जाए तो जो हमारा ये प्रौद्योगिक है इसने बहुत से प्रोटीन निर्माण करने में अपना
महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि आपको यहाँ टेबल भी दिखाया गया है प्रोटीन के नाम एवं उनके उपयोग। देखते हैं कि इसमें जो है प्रोटीन और उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है और किस रूप में हो रहा है, तो ये जानना आपके लिए बहुत रोचक होने वाला है। यहाँ पर जो है प्रोटीन के नाम उनके जो है उपयोग, देखिए ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है और जानने वाली बात है। इसको नोट भी कर लो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रोटीन के नाम था उनके उपयोग। देखिए प्रोटीन क्या है? इंसुलिन है। इंसुलिन का उपयोग कहाँ हो रहा है? मधुमेह की बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डायबिटीज़ मेल्टेशन में यूज़ किया जा रहा है। अगर वृद्धि हार्मोन की बात करें तो प्यूबर्टी बौनापन को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम एरिथ्रोपोनाइटिन की बात करें तो ये एनीमिया नाम की बीमारी पे जो है अच्छा खासा इसका प्रभाव देखने को मिला है। इंटरफेरॉन जो होती है ये विषाणुओं का संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हम जो यूकेटिन 2 का इस्तेमाल जो किया गया है वो किया गया है कैंसर के लिए। तो कितना इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर जो है क्लैंटिंग फैक्टर, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर। तो क्लोटिंग फैक्टर जो है यहाँ पर 8 का इस्तेमाल जो हुआ है हीमोफीलिया ए की के लिए हुआ है, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए क्लोटिंग फैक्टर 9 का तो हीमोफीलिया बी के लिए यूज़ किया गया है। मोनोक्लोनल प्रतिपिंड जो होती है दोस्तों ये संक्रमण रोगों के लिए किया जाता है। अगर उत्तक प्लाज्मोनोमोनल कारक को देखें तो ये हृदय घातों के लिए होता है, यानी हार्ट अटैक में जो है इसका काफ़ी अच्छा उपयोग भी देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों एंजाइम की बात बताया जा रहा है कि एंजाइम भी जो है क्लोनित जीन से पैदा किए जा चुके हैं, यानी एंजाइम भी जो है बहुत सारे पैदा किए जा चुके हैं इसी क्लोनिंग करने से। तो देखते हैं कौन कौन जो है एंजाइमों क्लोनिंग की गई है, तो जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ पर एंजाइम के नाम उनके उपयोग दिया गया है। तो देखिए एंजाइम जो है अगर देखा जाए प्रोटीएज जो होती है डिटर्जेंट एवं मांस को जो है कोमल बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ये एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज जो होती है बियर के निर्माण और ब्रेड एवं वस्त्र उद्योग में जो है बहुत आसानी रूप से किया जा रहा है। अगर हम ग्लूकोआइसोमेरेज की बात करें तो ये जो होता है कर्ण शरबत बनाने में जो चीनी से अधिक मीठी होती है और जो है मृदित पेय को बनाने में जो स्वाद एवं महक प्रदान करती है। तो जो है ग्लूकोआइसोमेरेज का उपयोग बहुत ही आसान तरीक़ा से किया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र में। तो ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। अगर बात करें Q1 एंजाइम भंगुरे होते हैं और उन्हें जेल में बंद किया जाता है और छोटे कृत्रिम कोशिकाओं में जो आवृत किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। देखते हैं आगे क्या है हमारा। अगर बात किया जाए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात तब साबित हुई तब आया हमारे समझ जब 1920 इसमें जो है पेनिसिलिन की खोज के बाद जो है 600 से भी अधिक एंटीबायोटिक विभिन्न सूक्ष्मों से प्राप्त किया जा चुका है और इसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य में भी बहुत काफ़ी सुधार भी हुआ है, यानी इंसानों के स्वास्थ्य पे जो है इन एंटीबॉडी के कारण कई तरह की बीमारी से छुटकारा भी मिला है। तो आप समझ सकते हो कि एंटीबॉडी हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो गया। कहते हैं एंटीबॉडी के संश्लेषण के लिए जैव संश्लेषी पदार्थों को जो है आनुवांशिक अभियंत्रण की दिशा में अनुसंधान चल रहा है। कहते हैं अनुवांशिक परिसंचलन जेनेटिकल मैनिपुलेशन द्वारा नए एंटीबायोटिक भी प्राप्त किए जा चुके हैं। तो कहा जाता है कि ये तो खोज चलती रहेगी, क्योंकि ये जैसे जैसे मानव में बदलाव होती जाएगी वैसे वैसे तरह तरह के जो है एंटीबायोटिक की खोज होती रहेगी और ये काफ़ी इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। बात करें यहाँ टीका यानी वैक्सीन की, तो रैबीज एवं यूक्रेट शोध आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी के लिए जैव अभियांत्रिकी यानी बायो इंजीनियरिंग टीके द्रव्य को विकसित किया जा चुका है। प्रजनन प्रोटीन के लिए एक जीन को जो है प्लाज्मोडियम में प्रविष्ट कराया जाता है और अनुयोगिक डीएनए धारक जीवाणु तब भारी मात्रा में प्रोटीन उत्पन्न करता है। इस प्रोटीनों को जो है टीके के साथ संयोजित किया जाता है और टीका लगाने पर तुरंत जो है प्रतिजनन के विरोध प्रतिपिंड पुनर्योजित उत्पन्न हो जाता है। तो ये वैक्सीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि वैक्सीन बनाने की जो है बहुत ही आसान तरीका होता है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसजीन्स एंड द ट्रांसजेनिक। देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर transgene and transgenic. The genetical engineering has made a possible production of organism of one species carrying to genes of another species.
The foreign gene is called transgenes. The transgenes is a foreign gene is called the transgene. The plant or animal carrying the terms as an antigen. Antigenic. There is a plant and animals carrying to the terms is the antigenic. The fact here, us Centricalis is a engineering is a organism carry a foreign genes are turned is a transgenic. The genetically is engineering is the organism. A carrying of foreign genes are a term is a transgenic. There is important here usefulness of transgenic organism. For here, a better yard of desirables is stress can be introduced or increasing in agriculture, plants and domestic animal, especially the cattle. There is especially of cattle, their plant and domestical, and the variables product can be produced by transgenic plant and animal. There is a valuable products can be produced by transgenic plant and animal. The transgenic plant and animal can be used for the investigating biological process such as a gene expression. This is the most important here. Transgenic plant and animal can be used to the investigate of biologically process such as gene expression. And next here, the methodology. Methodologies for production of antigenic. There are two methods which are mostly used of generating of transgenic. There are micro injection of foreign DNA into the pronucleus of fertilized eggs and retroviral vector method. The infection of pre-implantation embryos with their enterovirus carrying a foreign DNA. There is the most important for the methodologies of production of antigenic. Here, the first step is a method has be a flowing step. The first method has be flowing step. The first here, a collection of oocytes from to the animal killed in the slaughter and the house of surgically removed from to the female parents and in the vitro malnutritions of astrocytes and in the vitro fertilization with the male semen and the egg octocyte outside were to be centrifuged to the centrate yolk which is the normal cells prevent male pronucleus from the begin see under to the dissecting microscope and the macro injection of the input DNA into male pronucleus as a usually 100 to 1000 copy of the gene interest are injected and the in vitro development of embryos and the non-surgical implantation of the embryos into the recipient foster mother and screening of DNA of the offspring of foster mother of presence of transgenes and the offspring with the transgenes are transgenic organism. There is the most important show in this diagram. There is the most important the micro injection of input DNA into the male brown nucleus. There is the most important brown nucleus is the center and brown nucleus here. The glass macro injected here and needle DNA fertilized egg and the lice secretions and the holding hepatitis. There is the most important for the macro injection of input DNA into the male brown nucleus. There is the most important. In the second method is called the retroviral vector method. There is a retroviral vector method. The DNA required to be transferred into the female as introduced through their enterovirus which is infected to the cell on the earlier stage embryos before implantation into the expected female. There is the most important retroviral vector method. This is the most important. यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है प्राजीन और पराजीनी. देखिए ट्रांसजेन एंड ट्रांसजेनिक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये कई बार एग्जाम में भी आया है. कहते हैं अगर देखा जाए आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से दूसरी प्रजाति के जीन के वाहक प्रजातियों जीनों का जो है उत्पादन संभव हो गया. यानी दूसरे जो है जीव उसका संभावित उत्पादन करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं बाहरी जीन को जो है पराजीनी कहते हैं. जो बाहरी जीन होता है उसे पराजीनी कहते हैं. पराजीनी
तो परागजीनी कहते हैं जो बाहरी से जीन हमें प्राप्त होती है। जो पादप एवं जंतु इसके वाहक होते हैं अर्थात जिनमें किसी दूसरे प्रजाति का जीन होता है उन्हें परागजीनी कहते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए अभियांत्रिक जीन जीव जो कि बाहरी जीन के वाहक होते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक अथवा परागजीनी भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि अभियांत्रिक जीव जो कि बाहरी जीन को वाहक होते हैं यानी बाहरी जीन के वाहक होते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक अथवा परागजीनी कहते हैं। अगर बात यहाँ पर किया जाए परागजीनी जीवों की महत्वपूर्णता का यानी आवश्यकताओं का उपयोगिता का, तो ये आपके समक्ष बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि परागजीनी जीवों की उपयोगिता क्या रहेगी। तो कहते हैं कृषि पादपों जैसे घरेलू पशुओं के विशेष रूप से मवेशियों में अधिक उपज के लिए वांछनीय विशेषताओं का समावेश किया जा सकता है। यानी देखिए इसका उपयोग करके जो है हम कृषि पादपों और घरेलू पशुओं के विशेष रूपों से मवेशियों में अधिक उपजाऊ करने के लिए भी हम इसको अग्रसर कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर दूसरी तो इसमें यही बात बताया गया है कि परागजीनी पादपों और पशुओं में कीमती उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए परागजीनी जो जीवों की उपयोगिता कितना इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर कि अगर हम देखा जाए तो पादपों और पशुओं से कीमती उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं परागजीनी पादपों एवं पशुओं की जैव प्रक्रियाएं जैसे जीन अभिव्यक्ति की जांच के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी इस प्रक्रिया के द्वारा जीन अभिव्यक्ति के जांच के लिए भी जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है जिसको भविष्य में और भी कई उपयोग सिद्ध होगा। यदि हम बात करें जो है परागजीनी के उत्पाद की विधि, तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा चरण भी नहीं होती है। परागजीनी उत्पाद करने की दो विधियां होती है। एक तो बाहरी डीएनए एवं निष्पेषण अंडे से जो है परागकेंद्रिक में माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू होता है, जिसके विषय में हम चर्चा भी किए थे। तो माइक्रो इंजेक्शन जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरा जो है पार्श्व विषाणु वाहक विधि यानी रेट्रोवायरल वेक्टर मैथड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट मैथड है। बाहरी जो है डीएनए वाहक पार्श्व विषाणु द्वारा आरोपित भ्रूण का संक्रमण कराता है। अब देखिए इसमें चरण कौन कौन से होते हैं तो वो देखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। पहली चरण में तो यही बात आता है कि कसाई खानों में मारे गए जो है पशुओं से अथवा मादा जनक कोशिकाओं से शल्य क्रिया द्वारा जो है अंडकों का संग्रह। देखिए ये अंडों का संग्रह इसलिए करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका जो है बेनिफिट हम आगे चल के इसको उठा सकते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी पशु अगर उससे हमें मिल सकता है, ठीक है, तो उसके जो अंडकों होता है या जनक कोशिकाएं होती है तो उससे हम जो है आगे जो है इसका कर सकते हैं। आगे बहुत सारे चीज़ें जो होती है हम इसका करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेज में यही होता है कि अंडकों का पात्र यानी इन विट्रो परिवर्तन, इसका पात्र जो होता है उसमें इसको स्टोर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो नर के शुक्र द्वारा जो है पात्र निषेचन के रखा भी जाता है, यानी नर जो होता है उसका शुक्राणु जो है रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर देखें कि अंडों का जो है अभिकेंद्रक पीतक के संग्रह के लिए किया जाता है, क्योंकि पीतक जो कि सामान्य कोशिकाओं में नर प्रकेंद्रक के विक्षेप सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने से रोकता है। अब बात करें निवेशी डीएनए को नर प्रकेंद्रक में माइक्रो इंजेक्टेड का, तो सामान्यतः इंद्रित जीन 100 से लेकर 1000 तक प्रतिकृतियाँ प्रवृत्त कराया जा सकता है। यानी हम इसका बहुत सारे कॉपी कर सकते हैं, प्रतिकृतियाँ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए 100 से 1000 के रूप में हम प्रतिकृतियाँ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के लिए रखता है। यदि बात करें पात्र में भ्रूण का विकास भी किया जा सकता है, तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी का ही जो है रूप है। एक भ्रूण का जो है अदाता छात्र माता यानी फोस्टर मदर में भी बिना चिकित्सक क्रिया के भी आरोपित किया जा सकता है। यानी कोई भी माता हो, फोस्टर मदर हो, तो जो शल्य क्रिया के द्वारा आरोपित करना ये बहुत ही आसान मेथड बन गया है। अगर करें धात्रेत्र माता की संतानी डीएनए के परागजीनी की उपस्थिति के लिए जांच भी करवाया जा सकता है और प्रजननी युक्त संतरीय परागजीनी प्राणी भी बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी प्रस्तुत है जिसमें बताया गया है, इसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि नर जो है परागकेंद्रक में निवेश डीएनए का माइक्रो इंजेक्टेड किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर जो है सुइयों के थ्रू जो है इसके जो है निषेचन अंड को यहाँ पर स्थापित किया गया है डीएनए में, और ये परागकेंद्रक होते हैं और परागकेंद्रक जो है मेल फीमेल को दर्शाया गया है, हड़ का चूषण बनाया गया है और चिपटे का जो है पकड़ना इसमें बताया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है।
Transgenic plant, by the recombinant DNA technology, plant or breeder can be now directly modified to the DNA plant. They can add genes from other species to be a plant. The most popular method for doing this is produce a transgenic plant by the use of Aerobacteriums and Tumorphosis. It is a soil bacterium which has a natural genetic engineering system has a plasmid which can be intrusted into the plant cell. Is Agrobacterium tuberculosis is called the glass tumorous and in the several plant. The information of productions of goals present in a plasmid Ty is their bacterium. A segment of DNA from to their plasmid can be transferred into plant cell. In the Ti plasmid, goals forming genes can be removed and substituted by the desired genes. The problems can seen then to the use of the transformer plant cells such as the foreground genes in their chromosome and transforming plants cells can be expressed normally. There is a transgenic plant that is shown here. The here show the transgenic plant, their isolated TIs plasmodids and the interfere foreground DNA into the TI plasmodid. The infected plant protoplast with their plasmodids. There is a foreground DNA from another plant or microorganism. Their experiment go with to next stage. There is a go with the plant plastoplast is the protoplast and the growth cell containing of TI plasmodid and with the foreground DNA. There is a generate of plant. There is a goal use of turnips for the bacterium carrying of T1 plasmidid. Examples of transgenic plant, the cotton which can be direct attacked by the bomb, and the corn is a soybeans which are more tolerant through their pesticide. And transgenic plant can also serve factories to the produce a medically and commercially useful protein. Serum is a albumin in use to the preparation given to the patient with their bone injury and other form to replacement of body fluid. A genetically alert to the potatoes, tomato plant can be yard of serum albumin. The next year is a transgenic animal. The transgenic animal experiment for the mice. Mice is a difficult to generate of transgenic animal and the animal cells do not accept a plasmodid. Transgenic mice are however routinely is produced in the laboratories. Throughout their world to the macro injected foreground DNA, the gene for a growth hormone from a rat was the macro injected into the mouse egg. Their mice grow is larger than there is a lateral matters, and this was the because rat genes is got integrated into the mouse DNA and was began expressed. Here show this diagram the transgenic mouse compared to the normal mouse. There is the most important there are transgenic mouse. The transgenic method is goes with the goat. The transgenic goat has been to develop from to fertilize egg to injected with their recombinant DNA consists of goat gene. Their sequence is a plasmid with their human genes for the TPA is a tissue is a plasminogenes activator. The goat milk contains this factor which is dissolve blood clot. This has proved very usefully for the heart attack, is a coronary thrombosis and the stroke patients and the cattle. The cattle is a transgenic livestock has the potential of produce a large quantity of the drugs faster and at a much cheaper rate than from the bacteria which has to be a cultured in their industry vessels. And Chinese hamster, the Chinese hamster is a blood clotting factor is a factor 8. Genes has been interested in the Chinese hamster ovary cell. This factor saved the patent suffering from to the hemophilia A. The blood clotting factor has also been generated through recombinant DNA technology in a Chinese hamster. This is estimated the need to be get it is from human blood along with the remove of the risks of transmitted AIDS. There is a most important for a Chinese hamster.
The next layer is a bioremediation. Bioremediation is a remedies through the organism. That is the most important. The genetically is engineering bacteria can be cleaned up a pollutant from the environment. This is called the bioremediations. The transformed bacteria is a metabolically break down toxic pollutant into the harmless compound. The mercury stains bacteria, they process a metallic mercury which is a damage the nervous system into a non-toxic compound. There is the most important here. कहा जाता है मादा में स्थानांतरित किया जाने वाला डीएनए पशुवारस द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है जो कि आरंभिक अवस्था वाले भ्रूण की कोशिकाओं में जो है ग्रह मादा में आयोजित किए जाने से पूर्व को संक्रमित करता है। अगर हम बात करें प्राजीनी पादप की तो इसमें जो है पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा पादप जो है प्रजनन करता अब सीधे पदार्थों के डीएनए के प्रवृत्त कर सकते हैं। वे अन्य प्रजातियों के जीन पादप में जोड़ सकते हैं और परजीनी पादप प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है और कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम्स यानी जो ट्यूमेफेनेसिस का प्रयोग है। यह एक मादा जीवाणु है जिसका एक प्राकृतिक आनुवंशिक अभियांत्रिक तंत्र है। इसमें जो है प्लाज्मिडम्स होते हैं जिसे पादप कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया जा सकता है। अगर बात करें हम एग्रोबैक्टीरियम्स ट्यूमेफेनेसिस के तो ये हम चित्र में भी देखेंगे। कई पादपों में जो है पिटिकाएँ या गाल बनी जाती है और पटिकाएँ गल बनने के लिए सूचना जीवित जो है प्लाज्मिड टीआई में होती है। अगर बात करें प्लाज्मिड डीएनए के एक खंड को पादप कोशिकाओं से करके उन्हें स्थानांतरित भी किया जा सकता है और टीआई जो है प्लाज्मिड में पटिकाएँ बनने वाले जीवों के जो है अच्छे वांछित जीन से प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। प्लाज्मिड्स तब पादप कोशिकाओं के रूपांतरण में प्रयोग किया जा सकता है। अब परिवर्तित पादप कोशिकाओं के गुणसूत्रों में ऐसे बाहरी जीन सामान्यतः अभिव्यक्त हो सकते हैं। इस चित्र में अगर आप देखोगे तो इसमें जो है ट्रांसजेनिक की बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है। इसमें टीआई प्लाज्मिड का जो है पृथक्करण दर्शाया गया है और गैर डीएनए के टीआई जो है प्लाज्मिड में डाल दिया गया है और इसमें जो देखोगे कि प्लाज्मिड प्लास्टो को प्लाज्मिड में संकलित किया गया है और अन्य पादपों एवं सूक्ष्मजीवों से गैर डीएनए प्राप्त किया गया है। अगर हम देखें आगे चल के तो देखिए तो इसमें देखोगे कि पादप जो है प्रोटोप्लास्ट दिखेगा और गैर डीएनए धारक जो है प्लाज्मिड से युक्त कोशिकाओं के आगे परिवर्तित किया गया है और इस प्रकार जो है पुण्य पौधे बन जाते हैं। यानी टीआई जो है प्लास्टोपोजी वाहक जो है बैक्टीरिया के कारण जो है सिलेजम में पिटकाणु गर्ल्स से निर्मित किया गया है। यदि बात करें हम यहाँ पर परजीवी पादप के उदाहरण के रूप में तो कहते हैं कपास जो कृमियों द्वारा आक्रमण को रोक सकता है और मक्का एवं सोयाबीन जो सूखे एवं कीटाणुओं के प्रति अधिक सहनशील है। तो इस प्रकार जो है परजीवी पादप के उदाहरण हम देख सकते हैं कि कपास जो है कृमियों द्वारा जो है आक्रमण को रोक सकता है और मक्का व सोयाबीन जो है सूखे एवं कीटनाशकों के प्रति जो है अधिक संवेदनशील है। कहते हैं परजीवी पादप औषधि एवं व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री के रूप में कार्य कर सकता है और जो है सीरम्स एम्ब्लेमेंट जलने से क्षतिग्रस्त हुए रोगियों के लिए उपयोगी मार्ग यानी प्रिपरेशंस निर्माण एवं शरीर जो है द्रव्य को प्रतिस्थापन में प्रयुक्त भी होती है। आनुवांशिक रूप से जो है परिवर्तन आलू व तमाकुल के पादपों में जो है सीरम्स एम्बुलेंट प्राप्त किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे भविष्य के लिए। यदि बात करें हम जो है परजीवी जंतु के तो इसमें जो है मूषक सबसे नंबर 1 पे आता है यानी माइस को लिया गया है मूषक। कहते हैं परजीवी पादप जंतु जो है पैदा करना कठिन है। देखिए परजीवी जंतु पैदा करना कठिन है क्योंकि जंतु कोशिकाएं जो है प्लाज्मिड स्वीकार नहीं करती है, लेकिन जो है परजीवी जो है मूषक संपूर्ण विश्व में सामान्य रूप से प्रयोगशालाओं में बाहरी डीएनए माइक्रो इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट कराकर उत्पन्न किए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बात तो 100% सही है कि जितने भी हैं जीव जंतु में वो जो है प्लाज्मिड स्वीकार नहीं करते। बेशक पौधों में आप कर सकते हो बट जिन में नहीं होता जंतुओं में। लेकिन बात यहाँ मूषक पे आया है तो मूषक पे किया गया एक्सपेरिमेंट और ये सफल भी हुआ है। चूहे से वृद्धि हार्मोन के जीन लिए गए और उनके मुश्कों के अंडों में जो है माइक्रो इंजेक्ट कराया गया। इसी कारण ये मूषक अपने साथियों की तुलना में अधिक बड़े आकार के हो गए। ऐसा चूहे को जीनों का जो है मूषक के डीएनए के साथ एकीकरण होकर अव्यक्त हो जाने के परिणाम स्वरूप संभव हुआ।
अब इसी जो है डायग्राम में आप देख सकते हो कि दोनों जो है माइस में कितना डिफरेंस दिखाया गया है। तो यही चीज़ जो था इस एक्सपेरिमेंट में दर्शाने की कोशिश किया गया था। अब देखा जाए तो सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट यहीं तक रुका नहीं, उसके बाद बकरियों पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया। बकरी के एक जो है निश्चित अंडों में पूरी डीएनए के झंझट द्वारा प्रवेश कराया गया और इन डीएनए में बकरी के जीन जो है अनुक्रम का जो है मानव टीपीए यानी ट्यूशन प्लस प्लास्टोनोल सक्रियम के जीन में शामिल थे। बकरी के दूध में यह घटक टीपीए पाया गया जो रक्त के थक्के समाप्त कर देता था और यह हृदय आघात यानी कोरोनरीज थ्रोम्बोसिस और स्ट्रोक रोगों के लिए लाभप्रदायक भी है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है बकरियों पे जो एक्सपेरिमेंट कराया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो है कि हार्ट अटैक को ये कवर करता है, हार्ट अटैक ना होने देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अगर बात करें हम मवेशियों के, तो प्राचीनी मवेशियाँ जो है पराधन में अधिक तेज़ी से जो है एवं सस्ते दामों पर बड़ी मात्रा में औषधि पैदा करने की क्षमता रखती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि पशुधन से जो है हम अधिक से अधिक मात्रा में औषधि पैदा करने की क्षमता विकसित किए हैं। इसकी तुलना में जो है जीवाणुओं से औषधि निर्माण करना अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि इनकी सर्वदा विधि औषधि निर्माण हेतु बड़े औद्योगिक क्षेत्रों पात्रों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें चीनी हैमस्टर की, तो देखिए चीनी हैमस्टर जो होती है रुधिर थकाकारी कारक होता है, जो कि किसकी वजह से होता है, एट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की वजह से होता है। कि जीन को जो है चीनी हैमस्टर अंडाशय कोशिका प्रविष्ट कराया जाता है और ये उत्पादन हेमोफिलिसिस के पीड़ित व्यक्तियों को प्रायः रक्षा भी करता है। चीनी हैमस्टर में जो है पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जो है रुधिर थकाकारी उत्पादन करके मानव रक्त से प्राप्त किए जाने की आवश्यकताओं का निराकरण एवं साथ ही डीएनए नामक रोग के संक्रमण खतरे को भी निराकरण करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। यदि बात करें यहाँ पर जैव उपचार के यानी जीवों द्वारा उपचार, तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है। आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जो है जीवाणु पर्यावरण से जो है प्रदूषकों के साफ कर सकते हैं, यानी पर्यावरण से जो प्रदूषक होते हैं इसको भी इससे साफ करवाया जा सकता है। ठीक है, इसे जैव उपचार कहते हैं। परिवर्तन जीवाणु विषवत प्रदूषकों का उपचारित अपघटन करके उन्हें विषवक्त अथवा हानि रहित यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। पादप प्रतिरोधी जीवाणु जो है विधात्मिक पादप तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं को प्रक्रिया करके एक अभिव्यक्त यौगिक के रूप में परिवर्तन कर सकती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने बता दिया है। Our next topic is human genes therapy. There is a most important topic here, human genes therapy. The many people are born with or suffer from a disease such as the sickle cell anemia and the hemophilia. And the suffer combined immunodeficiency syndrome, there is a SCID. There is the most important here disease, a server combined immunodeficiency and the color blindness. So diseases are causing due to genetical defected. There is a genetical defected. These genes is genetically defected are hereditary. It has been to stimulate about around 2,000 children in the India along on the born every day with a genetical disorder. Let's learn about there is a method of remove of creations of genetically defected. There is a first here a gene function. The genes functions is the genes play a number of different role in the proper functioning of an organism by the controlling synthesis of enzymes involved in the biochemical reactions. Regulating their synthesis as such that is the right enzymes appear at the right times. Sometimes genes may be not be functioning or properly due to the some irregularity or defect as their structure. This may be lead to be genetical disorder or defected genes may be appear in or individually in the following two way. There is a most important way. The first here, a container defected genes are inherited and their defect run into the family. For example, color blindness is a hemophilia, sickle cell anemia. And second here, a genes become defected all of a sudden due to mutation during the earlier development. For example, albinism, not heritable. That is the most important here. A gene is a mutation may be altered. There is a synthesis of active on enzymes needed for their normal combustions and the chemical reaction are from normal functioning of an organism. The sequence are here accumulations of the metabolic substance that are toxic and
deficiency of the compound that is important for a normal cell functioning. And there are a mutation that can be lead to a disorder in any part of body including muscles, eyes, liver, bones, kidney, nerves and the blood system. Under a normal conditions, genes work in the total harmonic competition. Their specific job of the converted a raw material into the finished product by the synthesis of the specific enzyme. So here show the normal genes functioning here. Genes A, enzymes A, and there are genes B, enzyme B, and gene C, enzyme C. There is the most important. The substrate product and the product B, their end of product, intermediate production. There is the most important diagram shown here. Are normal gene functioning. The next are defected genes functioning. There are sometimes absence of the gene or defect in a single genes may be a result in a defected metabolism and desired product may be never to the formed. Rather is a harmful product may be obtained. There is a show in this figure. There are genes A and the genes B are defected or absent. There is enzyme A, but here is a no enzyme. There are substrate product A and the no product B and no end of product. There is a defected genes functioning here. The absence of enzyme B resulting in the accumulation of the neutralized of product A and the end of product is not to be produced. You will be allowed to be know that is a number of human disorder are causing due to the single gene defected and the following table give an idea of some such idea causing to the due to the missing of defected genes product and the symptom of their disease. Here show the some common single gene defected here. So here show the disease and gene product and symptom. There is a first of all here subcombined immunodeficiency syndrome SCID. There is a gene product is absence of adenosine determinants and there is symptom is a loss of immunity and T lymphocytes and the B lymphocyte is a low count. And second is a hemophilia. The hemophilia is a gene product here absence of blood clotting. Their factor is 8. Here the symptom defected blood clotting and chlorine blooding in the joint. There is the most important here. And second disease is here sickle cell anemia. There is third sickle cell anemia. There is defected beta chain of the hemoglobin. And there is symptom of damage to heart, spleen, kidneys, liver and brain. And the eighth list is a phenolactonuria means PKU. There is accommodation of it is the amino acid phenol amine blood. There is the gene product and the symptom is a cerebral mental degradations anabolism black is a lack of pigmentation. There is a most symptom here important. आगे जो है मानव जीन चिकित्सा. देखिए दोस्तों ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मानव जीन चिकित्सा के विषय में हम जानना चाहते हैं. कहते हैं मानव जीन चिकित्सा होती क्या है. बहुत से लोग जो है आपने देखा ही होगा कि हंसकार कोशिका रखता है यानी सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानते होंगे. कभी किसी ने सुना भी है किसी ने नहीं भी सुना है. कहते हैं हीमोफिलियोस गंभीर संयुक्त जो है कंबाइंड डिसऑर्डर है जिसको हम SCID भी कहते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीज़ है यानी ये इम्यूनिटी से संबंधित है. और एक बीमारी और देखा जाए तो वर्ण अंधता यानी अंधापन. आपने देखा होगा कि माता पिता अगर अंधे हैं तो बच्चे के भी होने के चांसेस बढ़ जाता है. यदि रोग के कारण जन्म से ही पीड़ित रहते हैं तो ये जो रोग है अनुवांछित त्रुटियों के कारण होते हैं. यानी ये सिर्फ ज़रूरत नहीं कि बच्चों को किसी कारणवश हुआ है. ये अनुवांशिकता से पीड़ित थे जिसकी वजह से ये त्रुटियाँ उनमें भी प्रवेश कर गया है. तो ये अनुवांशिक त्रुटियों के कारण होते हैं. ये त्रुटियाँ जो है अनुवांशिक होते हैं और ये अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रतिदिन लगभग जो है 2000 बच्चे अनुवांशिक त्रुटियों के साथ पैदा होते हैं. ठीक है. इसे में अनुवांशिक दोषों को दूर करने का ठीक करने की विधि के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे. तो ये तो इसमें दो राय है नहीं कि हमारा देश में जो है अनुवांशिक विकारों से ग्रस्त बच्चों की संख्या में कमी नहीं है. दिन प्रतिदिन जो है इसकी क्षमता जो है बढ़ती चली जा रही है. चाहे वो सिकल सेल एनीमिया के रूप में हो या हेमोफिलियस के रूप में हो या आपको पता है कि SCID के रूप में हो या वर्ण अंधता के रूप में हो. तो किसी न किसी रूप में बच्चों में ये सारी गंभीर बीमारियां पाई जाती है जो अनुवांशिक से रिलेटेड होती है. अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो समझना आपके लिए ज़रूरी है कि जीन के कार्य क्या है. आखिर जीन के कार्य होते क्या है. क्यों ये अनुवांशिकता में इतना महत्वपूर्ण योगदान देता है. कहते हैं किसी जीव के सुचारू रूप से कार्य करने में जीन कई महत्वपूर्ण भूमिका का निम्न प्रभाव करते हैं. इसलिए जीन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट
यहाँ योगदान रहता है। अगर पहली बात देखा जाए तो जैव रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित प्रकार एंजाइमों को जो संश्लेषण में नियंत्रण करता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाता है ना कि एंजाइमों को संश्लेषण में नियंत्रण करता है। दूसरी बात देखें तो उनके संश्लेषण का नियमन, ताकि उपयुक्त जो है प्रक्रिया ठीक समय पर प्रकट हो सके। कभी कभी जीन उनकी संरचनात्मक त्रुटि और अनियमित के कारण ठीक यानी भली भांति कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण जो है अनुवांशिक विकार हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक त्रुटिपूर्ण जीन निम्न दो तरीके से प्रकट होते हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। कहते हैं पहला तो यही होता है कि कुछ दोषपूर्ण जीन अनुवांशिक होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सकते हैं। इसके कारण कुछ रोग जो है परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहते हैं। उदाहरण वंग अंधता, मैंने पहले ही कहा था कि जो ये सब बीमारी है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये ट्रांसफ़र होती रहती है। बात करें हेमोफीलिया और बात करें हंसियाकार कोशिकारक्ता का, तो ये सारे ऐसे बीमारी है जो पीढ़ी से दर पीढ़ी आगे ट्रैवल होते रहते हैं। बात करें दूसरी बात तो इसमें कहा गया है कि एक जीन आरंभिक परिवर्तन की अवधि में जो है उत्परिवर्तन के कारण अचानक त्रुटिपूर्ण हो जाती है। उदाहरणतः अगर रंजकहीनता का श्वेता यानी जो है एल्बिनिज्म या आनुवांशिक नहीं होती है। तो इसमें बात ये भी है कि कभी कभी जो ये समय के रिगार्डिंग इसमें त्रुटियां आ जाती है, और समय जो है आपको पता ही बदलता चला जा रहा है। आज जितना मौसम गर्म हुआ है उतना ही जीन में वह काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि जितनी गर्मी पैदा होगी उतना जो है जीन में काफ़ी डिफेक्टेड देखने को हमें मिल भी सकता है। यदि बात करें कि जीन की उत्परिवर्तन के कारण सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं की पूर्णता या जीव की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक प्रक्रिया यानी एंजाइम की जो है क्रियाशीलता पर, तो वह संश्लेषण से प्रभावित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न बातें सामने आती है। एक तो ये आती है कि विषैली उपचाची पदार्थों का संग्रह है, यानी ये विषैली पदार्थों का क्या है, संग्रह है। दूसरी बात देखें तो कोशिका के सामान्य क्रियाकलाप के लिए उपयोगी यौगिक की कमी होती है इसमें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रखता है। अगर बात करें यहाँ उत्परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप शरीर के किसी भी भाग यानी मांसपेशियां, नेत्र यकृति हो या अस्थियां हो, गुर्दे हो, बुकक यानी किडनी हो, तंत्र तंत्रिका हो, रुधिर आदि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही विकार देखने को मिलता है आनुवंशिकता के रूप में। सामान्य स्थिति में जीन जो है पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं और अपने कच्चे पदार्थों के अंतिम उत्पाद में बदलने के कार्य को विस्तृत एंजाइम के संश्लेषण द्वारा ही भी पूर्ण करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है। यदि बात करें हम कि सामान्य जीन कार्य प्रणाली क्या है और त्रुटिपूर्ण जीन क्या कार्य प्रणाली, तो सबसे पहले तो हम यही बात जानना चाहेंगे कि सामान्य जीन कार्य प्रणाली क्या होती है, आखिर सामान्य में क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जीन ए, जीन बी, जीन सी के रूप में आपको दर्शाया गया है। अगर वही बात हम देखें प्रक्रिया एंजाइम के साथ, तो एंजाइम ए, एंजाइम बी, एंजाइम सी के रूप में दिखाया गया जो प्रक्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बात अगर हम देखें कार्य द्रव्य में उत्पादन ए हो जाता है, जो फिर उत्पादन बी होगा और अंतिम उत्पाद बी बनेगा इसमें, क्योंकि इसमें कोई प्रकार की त्रुटियां नहीं है। लेकिन अगर हम त्रुटियों के ऊपर बात करें तो देखिए क्या होता है यहाँ पर त्रुटिपूर्ण जीन के क्या कार्य प्रणाली हो सकते हैं। तो इसके विषय में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कभी कभी एक जीन की कमी या एक जीन में त्रुटि के कारण त्रुटिपूर्ण जो है उपचार हो सकते हैं और एक वांछित उत्पाद नहीं हो पाता है, और ये विशेष हानिकारक द्रव्य का संग्रह हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जीन ए जो है एंजाइम ए, जीन बी दोषपूर्ण जो है अनुपस्थिति के कारण कोई एंजाइम यहाँ उपस्थित नहीं है, तो इसमें कार्य द्रव्य होगी वो उत्पादन ए होगा, और इसमें दूसरे बात में कोई उत्पादन बी में नहीं होगा और कोई लास्ट में अंतिम उत्पाद बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो जीन में त्रुटियां आई थी इसका जो है काफ़ी प्रभाव देखने को यहाँ पर मिला। तो इससे आप समझ गए होंगे कि त्रुटिपूर्ण जीन में कैसी प्रॉब्लम आती है और विदाउट त्रुटिपूर्ण जीन में जो है किस प्रकार की प्रभाव देखने को आपको मिलता है। अगर बात करें इस प्रकार के परिणाम स्वरूप जो है अभिव्यक्त उत्पाद ए का संचलन हो जाता है और अंतिम उत्पाद नहीं होता है, तो आप ये जानकर चिंतित होंगे कि बहुत से मानवीय विकार एक जीन के दोषों के कारण ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सारणी में भी हम देखेंगे कि उसमें दोषपूर्ण जो है अनुपस्थित जीन के लक्षणों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या इससे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सामान्य एकल जीन त्रुटियाँ दिखाया गया है, जिसको सबसे पहला तो हमारा SCID ही है, जिसको हम संयुक्त प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीज़ है जो कि आनुवंशिकता के रिगार्डिंग होती है। अगर देखा जाए जीन उत्पादन के रूप में तो एडेनोसिन एरोमिनसेंस की उपस्थिति के कारण होता है, यानी अनुपस्थिति के कारण ऐसा संभव होता है। और इसके लक्षण जो देखेंगे आपको प्रतिरक्षा का हर्ष हो जाता है, टी लसिकाएँ कोशिका, बी लसिकाएँ कोशिका की संख्या में कमी आ जाता है।
बात करें रोग अगर हम हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया में जो होती है जीन की उत्पाद की जो क्षमता होती है रक्त थक्काकारी कारक की अनुपस्थिति की वजह से होता है। और इसमें लक्षण जो आपको दिखेगा वो दोषपूर्ण रक्त थक्काकर जोरों से चिरकालिक यानी सदा रक्त स्वेत होती ही रहती है। तो ये रक्त स्रोत का मतलब होता है बहना, ठीक है, रक्त जो होती है बहते ही रहती है। अगर हम बात करें थर्ड की यानी हैसियो कार कोशिका रक्ता का, तो ये तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की दोषपूर्ण यानी बीटा श्रृंखलाएँ होती है। और बात करें इसके लक्षण का, तो इसमें हृदय जो है प्लीहा गुर्दे युकृत मस्तिष्क की क्षति पहुंचाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ लक्षण देखने को आपको मिलेगा। अगर बाद में हम बात करें अंतिम की, तो इसमें जो है फिनोल्फटोइनोरिया यानी PKU, इसमें जो होता है आपको यही देखने को मिलेगा कि रक्त में अमीनो अम्ल और फिनोल एलेलानिन का संचलन होता है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, बीमारी की बात करें, तो इसमें गंभीर मानसिक संदिग्धता और श्वेतता एल्बिनियम्स वर्णों की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत काफ़ी नुकसान होता है। टॉपिक इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर द मोस्ट ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर may be result in the serious a complication health problem and the inability of death. Techniques are began development as a replace defective genes or manipulate them to the remove to the genetical disorder. Such a treatment is called to the gene therapy. Gene therapy thus there may be a defined as a techniques in which is the patents is a suffer for the given healthy genes to replace the defective ones inherited from to the parent or to be enhanced to the action and reaction of the gene they already have. The replacement and alternation of defective genes is called gene therapy. Fan, what do you mean to gene therapy? The gene therapy is the replacement and alternations of defective genes called gene therapy. The human gene therapy is awarded seen to the additions of functionally normal genes or genes to be a genetical material and contain it in their human cell. And this with their aims of the corrections on inheritance defect. Their first, the ultimate goal is to let is a protein assembling unit. There is the most important is a protein assembly unit of the cell make a desired proteins need for their normal functioning of individually, and it's like a supplied a patent with their necessary genes product formed within the cell by their patient and own body. There is the most important for the gene therapy. यदि हम बात करें जीन चिकित्सा की, तो इस विषय में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जीन चिकित्सा जो है इसी पे आधारित है। कहते हैं अधिकांश अनुवांशिक विकार तथा रोगों के गंभीर जटिलता स्वास्थ्य समस्या एवं जतस्वतः मृत्यु हो जाती है। यदि किसी प्रकार का दोषपूर्ण जीन को हटाकर और उसके स्थान पर दोष रहित या स्वास्थ्य जीन लगाकर इन रोगों से मुक्ति पाया जा सके, तो यह मानव समाज के लिए वरदान सिद्ध भी हो सकता है। इसमें कोई राय और कोई दो विचार नहीं है, क्योंकि यही एक मेथड है जिसमें हम जो है जीन को, जो दोषपूर्ण जीन है उसको काट के हटा के जो है उसकी जगह सही जीन को स्थापना कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो है बायोटेक्नोलॉजी में ही संभव हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये समाज के लिए जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी हो सकता है। कहते हैं दोषपूर्ण जीनों के जो है प्रतिस्थापन का या कार्य क्षमता में वृद्धि की तकनीक विकसित करने को प्रयास किए जा रहे हैं, और जो दोषपूर्ण जीनों की चिकित्सा के लिए व्यवहार में लाए गए हैं उपाय या साधनों को जीन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य में न जाने कितने तरह के हमें विकार देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इन विकारों को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी जो है एक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ जो है चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर के आएगा। अगर देखा जाए जीन चिकित्सा एक ऐसी तकनीक है जिसमें रोगियों के आनुवांशिक दोषपूर्ण जीन के स्वास्थ्य जीन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो वो इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है कि आपको पता है कि जीन होता है, सबके पास जीन होता है, हर एक इंसान के पास होता है। तो कुछ जीन जो है डिफेक्टेड जीन होते हैं, तो हम डिफेक्टेड जीन को हटा के जो है उसके साथ दूसरा जीन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इसी को ही हम जीन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और होना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से भी हो जाता है। यह पुराने जीनों की अभिक्रिया के बढ़ाया जा सकता है, यानी कम भी किया जा सकता है और बढ़ा भी जा सकता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए जीन चिकित्सा के बारे में, तो कहते हैं दोषपूर्ण जीन का जो है प्रतिस्थापन या उसमें परिवर्तन को जीन चिकित्सा कहते हैं। तो बहुत साधारण वर्ड है जिसको आपको याद करना मुश्किल नहीं पड़ेगा कि दोषपूर्ण जीन का या तो हम प्रतिस्थापन कर दें या परिवर्तन करें, तो उसको हम जीन चिकित्सा के नाम से जानते हैं।
कहते हैं मानव जीन चिकित्सा आरंभ में मानव आनुवांशिक अभियांत्रिकी के नाम से भी प्रचलित थी, यानी इसको पहले हम जो है मानव आनुवांशिक अभियांत्रिक के नाम से पहले प्रचलित था। कहते हैं व्यापक रूप में ये कार्यकाली जो सामान्य जीन या जीन के मानव कोशिकाओं में उपस्थित जीन पदार्थों में संयोजित करना है और यह आनुवांशिक दोष को सुधारने की दृष्टि से भी किया जा सकता है। कहते हैं अगर अंतिम लक्ष्य कोशिका के जो है प्रोटीन संचलित एक व्यक्ति को जो है सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने देना है तो ये रोगियों को उसके अपने शरीर की कोशिकाओं के अंदर निर्मित आवश्यक जीन उत्पादों की आपूर्ति करने के समान होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं अगर देखा जाए, देखिए अंतिम लक्ष्य कोशिका को प्रोटीन संचलन को एक व्यक्ति को सामान्य क्रियाकलाप के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाना देना। देखिए कहते हैं इंसान के जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है शरीर के लिए प्रोटीन, और प्रोटीन वायरस भी बनी होती है, प्रोटीन से इंसान के शरीर भी प्रोटीन के बना होता है। तो यही है कि आवश्यक प्रोटीन बनाने देना ही जो है इसको जीन चिकित्सा के रूप में देखा जा सकता है। ये रोगों को अपने शरीर की कोशिकाओं के अंदर निर्मित आवश्यक जीन उत्पादों की आपूर्ति करने के समान ही माना जा सकता है। The our next topic is approach to human gene therapy. There is a most important topic here, approach to human gene therapy. There are two basic approach to human gene therapy. Their first is a somatic gene therapy and second is a germline gene therapy. There is a most important somatic gene therapy and germline gene therapy. The first of all here is the somatic body cell gene therapy. So what do you mean the somatic body cell gene therapy? So here once a normal genes has been to the close, it can be used to the correct to the genetical defect. Body cells are targeted for a genetical transformation. Defected genes are formatted by their normal. This approach helps in the correction of the genetical defect confined to a specific organ to tissue. There is the most important here. So here is the second is the germline sex cells gene therapy. There is a germline means sex cells gene therapy. In this approach, cell are germinal is epithelium and the gamete is a zygote or is genetically modified to be created on the individual that will be carry individual genes in following generations. Presenting all the research on human gene therapy is directly to about to correction genes defect in a somatic genes. Somatic genes is here is a non-sex cell. There is a non-sex cells and some somatic gene therapies can be grouped under two broad category. There is a ex vivo gene therapy and second here is a in vivo gene therapy and antisense gene therapy. There is a three is the most important category here. The first ex vivo outside the body gene therapy. This type of therapy usually involved the use of cell with the defected gene take from to the patient and after the gene alternations when to some genes are transfused or transferred back. No immunization response take place. The step involved in their procedure are here isolating and cell with the gene defected from to patient and the growing to the isolated cell in a culture alternating the genomes of the isolated cells and remedial genes and selecting growing and testing the alternative cells and transplanting or transfusing for alternative cells back into the patient. Here show this diagram. So here show the clear there are gene therapies, patient tissue and there are cell radicals gene constitute. The step included in the by is the bio gene therapy here isolating genetically defected cells first of all and growing the cell to the cellulars alternative cells and the remodeled genes and selective growing to the selected cell. There is the most important. There is a procedure of the therapy on here. Here diagram show the most important here things and the vector such as the retrovirus is used for the integration of normal gene in the host genomes and stem cells of the bone marrow are continuously producing a new cells. If such a cells are taken and put back after alternation to the remove the genetically defected and these cells can be divided differentiated into the various important cells such as B cells and the T cells, macrophages, red blood cells,
platelets, and bone cell. Genetically engineering stem cells and transplanting back into the patient as a body result is the continually supply of the required gene product. The techniques can be used in their treatment of following genetic disorder. The first here the serve combined immunodeficiency SCID. Second is the sickle cell anemia. Third is thalassemia and the content tumors. They are the most important. But second is a in vivo within the body gene therapy here. The hair therapy is a in vivo, it means within the body gene therapy. This type of gene therapy include to direct deliver of radical genes into the cells of a particular tissue of patient. And the adenovirus is a double-stranding DNA virus is a beginning used as a vehicle for transferring to the remediate genes. And the virus used are big enough to be cause any disease. This tissue is a specific virus integrated with their host genomes and can only defect it to dividing cells and not the other healthy cells. And this therapy may become useful in the treatment of cancer, Alzheimer's disease, and the Parkinson disease. The here show this diagrams is most important for this type of disease. There are tissue cells and patient expressible removable genes here, and the able gene therapy here are cloned to the impressible in the delivered to cell of tissue with the genetically defected, and the P is a parameters genes is a tissue specific gene. X is an immediate genes and encoded a protein that correct the genetically defected of patient. Here is a C is antisense therapy. You have learned that a step involved to the protein synthesis and transcription and translations. And this therapy is designed to the prevent of lower and expression to the specific gene, thus the limiting of amount of translation of protein from to our producing genes. This therapy involved to the introduce of nucleic acid sequence that is the complementaries to all the part of mRNA means messenger RNA formed in the target cell. Into the cells is a overproducing the gene product. This therapy is will be proved useful is a contain human genetical disorder, disease and the cancer and there is too much of the gene product at it is the continually presence of change the normal functioning of the cell. It has been to try to be a treatment of the malignant glioma and the brain tumor. There is a tullus is a sheba, is a tomato with a long shape life has been produced by this technique. Their technique is anti-sense genes here understand showing this picture. There is show the antigen genes therapy here. There is no translation, no protein synthesis in here. The most important the target of cell here, gene sense and the transcriptions and there is important. At least the antigen gene therapy here on the impressible genes is a close in the cerebral order, oriental and the introducing into a cell. The RNA is untranscribed from to the antisense sequence of normal mRNA when to the antisense RNA base pair with the mRNA translation of their mRNA is prevented. The antisense RNA does not be contain a single for initially for a translation. There is the most important here. यदि बात आता ही है यहाँ पर मानव जिन चिकित्सा के तरीके के बारे में तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं मानव जिन चिकित्सा के तरीके। अगर देखा जाए मानव जिन चिकित्सा के दो मूलभूत तरीके होते हैं, एक तो कार्य का जीन चिकित्सा और एक दूसरा आता है जर्म लाइन जीन चिकित्सा। यानी दो के विषय में जो है हम विस्तार से जानेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कार्यकीय शारीरिक कोशिका जीन चिकित्सा, यानी शारीरिक कोशिका के अंदर यानी जीन चिकित्सा जो होती है कैसी होती है। कहते हैं एक बार एक सामान्य जीन का जो है क्लोन बन जाए तो इससे आनुवांशिक दोष को ठीक करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी एक बार क्लोन अगर बना दिया जाए तो ये कई जीनों में जो है काफ़ी प्रयुक्त किया जा सकता है। कार्यकीय कोशिकाओं के जननी रूपांतरण के लिए लक्षित किया जाता है। दोषपूर्ण जीन के जो है सामान्य में रूपांतरित किया जा सकता है। यह विधि एक विशेष अंग या ऊतक तक सीमित आनुवांशिक दोष को ठीक करने में सहायक होता है। तो देखिए पहले ही मैंने बताया था कि जीन जो है आने वाले भविष्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि
अगर मान लीजिए जेनेटिकल डिसऑर्डर होती है तो इस जीन से ही जो है थेरेपी दे के जो है उस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। बात आती है दूसरी की, यानी जो है जर्म लाइन सेक्स कोशिका जीन चिकित्सा। ये सेक्स कोशिकाओं के रूप में होती है। कहते हैं इस विधि में जनन उपकला यानी जर्मिनेशन एपिथेलियम्स होती है। कोशिकाओं या युग्मकों का युग्मक का जो है आनुवांशिक परिकलन करके एक विशिष्ट का निर्माण किया जाता है जो अपने शरीर जो है आने वाली पीढ़ियों में उपचारित जीन का वहन कर सकती है। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि ये जो है जो आने वाली पीढ़ियों में उपचारित जीन का जो है वहन करती है यानी लाती है। वर्तमान समय में जो है मानव जीन चिकित्सा के क्षेत्र में समस्त अनुसंधान कार्य कोशिकाओं में जीन दोषों को ठीक करने की दिशा में किया जा रहा है। कार्य जीन चिकित्सा को जो है मुख्य रूप से निम्न व्यापक वर्गों में समूहित किया जा सकता है, यानी इसको जो है व्यापक वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। तो पहली बात तो यहाँ पर एक ही आएगी, जीव के बाहर जीन कोशिका, यानी जीव के बाहर जीन कोश चिकित्सा। उसके बाद आएगा जीवो यानी जीवों के अंदर जीन चिकित्सा। तीसरी बात आएगा एंटीसेंस जीन चिकित्सा। तो ये 3 भागों में जो है इसको आगे विभक्त कर दिया गया है। तो इसमें तो पहला अगर हम देखें तो इसमें बाहर जीव जीन चिकित्सा के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो कहते हैं बाहर जीव जीन चिकित्सा क्या है। कहते हैं इस प्रकार के उपचार में प्रायः रोगियों के शरीर से ली गई दोषपूर्ण जीन युक्त कोशिकाओं का प्रयोग सम्मिलित रहता है। जीन जो है परिवर्तन के पश्चात जब उन्हीं कोशिकाओं को पुनः डाला जाता है तो कोई भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नहीं होती है। और इस विधि में जो है कुछ चरण आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पहला ये करना होगा चरण में कि एक रोगी की से दोषपूर्ण जीन वाले कोशिका का पृथक्करण अलग कर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो हमने अलग किया है उन कोशिकाओं का संवर्धन करिए। उपचारित जीन द्वारा जो है पृथक्कृत कोशिकाओं के जीनों में बदल दीजिए, यानी जो आपने निकाल के अलग किया है उस जगह दूसरा जीन ला के डाल दीजिए और उसके जगह उसको प्रतिस्थापित कर दीजिए। परिवर्तन कोशिका का चयन प्रवर्धन और परीक्षण के बाद ही कीजिए। देखिए कोई भी कार्य करने से पहले परीक्षण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते हैं परिवर्तन कोशिकाओं के रोगों से वापस जो है प्रतिरोपण करना बहुत ही सरल हो जाता है फिर। और इन सब बातों को जो है प्रैक्टिकल दिखाने के लिए यहाँ पर जो है डायग्रामेटिक आपको शो किया गया है। इसमें 1 से लेकर 5 स्टेप है जो अभी हमने पढ़ा है उसी के विषय में यहाँ बताया गया है। और लास्ट स्टेप में जो है एक्सोम में आ जाता है, यानी उपचारित जीन निर्माण किस प्रकार होती है। और बाहरी जीनों के निम्न चिकित्सा निम्नलिखित चरणों में होती है। आनुवांशिकता दोषपूर्ण कोशिकाओं का पृथक्करण करना, कोशिकाओं के संवर्धन बढ़ाना, जो है उपचारित जीन द्वारा कोशिकाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद होता है परिवर्तन कोशिकाओं का जो है आगे और वृद्धि कराना, यानी चयन करना और उसको वृद्धि कराना। परिवर्तन कोशिका को पुण्य रोगी की जो है प्रतिरोपण करना। तो इस तरह से जो है बाहर जीन चिकित्सा का जो है चरण को हम देख सकते हैं और इसका अपना भी सकते हैं और इससे बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें पशु विषाणु जैसे वाहकों का उपयोग जो है पोषी जीनोम में सामान्य जीनों के साथ जो है एकीकरण के लिए किया जा सकता है। अस्थि मज्जा के स्टेम कोशिकाओं अनवरत जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यदि ऐसी कोशिकाओं को लेकर व परिवर्तन करने के पश्चात जीन जो है दोष दूर करने के लिए पुण्य स्थापित कर दिया जाए तो ये कोशिका विभिन्न महत्वपूर्ण कोशिका जैसे बी कोशिकाएं जो वृद्ध भक्षक कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेटस अस्थियां कोशिकाओं में विभाजित होकर अलग अलग हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। बात करें आनुवांशिक रूप में जो है अभियांत्रिक स्टोम कोशिका रोगियों के शरीर में पुण्य स्थापित किए जाने के जो है पश्चात वंचित जीन उत्पाद की समस्त आपूर्ति करती रहती है। यह तकनीकी जो है आनुवांशिक विकारों के उपचार में प्रयुक्त भी हो जाती है। कहते हैं गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षाहीनता यानी SCID, ये सबसे पहले इसकी वजह से होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो दूसरी बात देखा जाए तो हलीसिकार कोशिका रक्त आती है। तीसरी पे जो है थैलोसीमिया जाती है। उसके बाद है ट्यूमर यानी विशेष अवधुल ट्यूमर्स भी इसी के अंतर्गत आता है। बात करें अगले हम डिसऑर्डर की तो उसमें जीव जो कि जीवों के अंदर जीन चिकित्सा। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जीव यानी जीवों के अंदर जीन चिकित्सा क्या है। कहते हैं इस प्रकार की जो है जीन चिकित्सा में उपचारित जीन को सीधे ही रोगी के विशेष ऊतकों की कोशिकाओं के अंदर पहुंचाया जाता है। दोहरी स्टैंड युक्त DNA जो है विषाणु जो है ग्रंथि विषाणु एडविनोवायरस उपचारित जीन के हस्तांतरण में वाहक का कार्य भी करता है। विषाणु इतने शक्तिशाली
होने होते हैं कि कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यह जो है ऊतक विशिष्ट विषाणु पोषित जीनोम के साथ एकीकृत हो जाते हैं और केवल विभाजित होने वाली कोशिकाओं को ही संक्रमित कर पाते हैं और अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को ऐसा नहीं हो कर पाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर बात करें कि इसका कहाँ उपयोग होता है, तो ये होता है आपका उपकार जो यूज़ होता है, उपचार होती है कैंसर में, ठीक है, एल्जाइमर रोग में, परिक्लनस रोग के उपचार में उपयोगी सिद्ध काफ़ी हो सकती है। अब इसी बात को जो है डायग्रामेट्रिक दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, जहाँ पर जो है ऊतक एक्स दिखाया गया है, रोगी दिखाया गया है, अवक्तशील जो है उपचारित जीन दिखाया गया है, जिसमें जीवो जीन चिकित्सा के रूप दिखाया गया है। एक क्लिनिक्स अभिशक्तिशिक्त उपकरणों के जीन की जो अनुवांशिक दोष के मुक्त ऊतक में पहुंचाया जाता है। तो इसमें दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना याद रखना है आपने कि इसमें क्या होता है, जो डिफेक्टेड जीन होते हैं उसे काट के अलग करके जो है अच्छे जीन को वहाँ लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है प्रतिस्थापन किया जाता है और जो है व्यक्ति उस तरह के डिसऑर्डर से छुटकारा पा जाता है। अगला जो है हमारा दोस्तों ये है एंटीसेंस चिकित्सा। देखिए एंटीसेंस चिकित्सा क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने प्रोटीन संश्लेषण में सन्निहित चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। ये ट्रांसक्रिप्शंस में या ट्रांसलेशन के रूप में कार्य करता था। इस चिकित्सा के रूपरेखा विशिष्ट जीन की जो है विविधता को कम करने या रोकने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार जो अति उत्पादक जीन से प्राप्त प्रोटीनों और ट्रांसलेशन की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। इस चिकित्सा में जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है अनुक्रम का समावेश सन्निहित होती है, जो कि अति जीन उत्पाद कोशिकाओं से जो है पूर्ण एवं आंशिक mRNA लक्ष्य कोशिकाओं बने दूत, यानी इसको मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है, यानी मैसेंजर के काम करता है का एक पूरक होता है। ये चिकित्सा विशेष अनुवांशिक रोग यानी कैंसरों के उपचार में उपयोग सिद्ध होगा। और जहाँ पर अत्यधिक जीन उत्पाद या इसकी अनवरता विद्वानता कोशिकाओं के सामान्य कोशिका को परिवर्तन करता है, तो इसका जो है दुर्दम ग्लोसेमिया या मस्तिष्क अब्दुल के उपचार के लिए परीक्षण किया जा सकता है। तो कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगर देखा जाए सेवा में टमाटर जो कि लंबे समय तक सड़ता नहीं है, इस तकनीक द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इससे जो है टमाटर कई दिनों तक जो है सड़ेगा नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी है आने वाला भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई खाद्य पदार्थों के लिए भी वरदान सिद्ध हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि AGCT क्या, ये DNA का ही पार्ट है। अगर आपने पूरा चैप्टर देखा होगा तो आपने हेलिकल स्ट्रक्चर DNA का देखा होगा। तो इसमें AG एडेनाइन, G ग्लूटामाइन, C साइटोसाइन, T होता है टाइन्स के रूप में होती है। तो इसका नाम होते हैं और इसी के साथ वो खंडित करते हैं और इसी जीन को खंडित करके ही जो है नया जीन बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको बारे में आपको समझना है और जानना है। तो इसमें जो आपको देखोगे कि जो है एंटीसेंस जीन की चिकित्सा पद्धति इसी प्रकार होती है। ये काफ़ी उपयोगी भी सिद्ध हो सकता है। तो इसमें सेंस आपको दिख रहा होगा और जो एंटीसेंस भी दिख रहा होगा। बेस युग्म के दोहराकर स्ट्रैंड युक्त बनाया जाता है यानी मैसेंजर के रूप में, और यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होती है, कोई प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, कोई अनुवांशिक जीन उत्पाद नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अगर बात करें हम एंटीसेंस जीन उपचार चिकित्सा के, तो इसमें यही बात आता है कि एक प्रकट किया जा सकने वाला जीन को इसके विपरीत विन्यास में जो है क्लोन किए जाने के पश्चात इसे एक कोशिका में संविष्ट किया जाता है और इस प्रकार जो है प्रतिलेखित RNA सामान्यतः mRNA का जो है एंटीसेंस अनुक्रम बनाता है। जब एंटीसेंस RNA आधार mRNA के साथ सम्मिलित होती है तो mRNA ट्रांसलेशन रुक जाता है और अगर देखा जाए एंटीसेंस RNA में संश्लेषित आरंभ करने में संकोच नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है ये एंटीसेंस जो है जीन उपचार चिकित्सा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें जो है मैसेंजर का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। The next question here, the gene therapy, how far? There is a most important question for mind. Gene therapy, how far? The possibility of being able to genetically engineering human has a way been to be aim of contain researchers. So magical cell gene therapy is an earlier stage of becoming a mode of treatment of number of genetical and other diseases such as AIDS, hemophilia, osteoporosis, leukemia, lung cancer, serve common immunodeficiency, SCID, and the germline gene therapy is not to be currently appreciate any manipulations in the genetical material of sex cells might produce a
uniferences and character with the alarming. There is the most important here. Their disorder is the AIDS, hemophilia, atherosclerosis, leukemia, lung cancer, server combined immunodeficiency. There is the most important disease. And the consequence is the ossifrins gene therapy is thus not only a risk but is expensive and the time consuming of techniques available on the few advanced countries. Gene therapy has a following limitations here. Our research is limited to be only somatic cells. Treated individually can be not pass the genetical improvement to offspring, and there could be a possibility of the random integration of DNA into a human's chromosome leading to be inactivations or activations of a normal gene. This may be result in their deficiency of important genes or uncontrolled cell division leading to the cancer growth. There is the most important here. The procedure of planning has to be meet or restricted is a safely standard in a animal trials. And the last point is the target disease has to be limited to be those that is involved now defect in a single genes and normal genes is a must be close and they are available for a transplant. कहते हैं अगर देखा था जीन चिकित्सा, देखिए जीन से कहाँ तक हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जीन जो है चिकित्सा कहाँ तक संभव है। कहते हैं अनुवांशिक रूप से जो है अभियांत्रिकृत मानव निर्माण की संभावना विभिन्न अनुवांशिककर्ताओं के सदा के उद्देश्य रहा है। कार्य कोशिका चिकित्सा अपने आरंभिक चरण में कई अनुवांशिक एवं अन्य रोगों के उपचार का तरीका बन रहा है। जैसे आपको पता ही है कि एड्स हो, हीमोफीलिया हो, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो या लुकीमिया हो या फेफड़े का कैंसर हो या गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षाहीनता बीमारी हो, कई जगह जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा कर सकता है, क्योंकि कहते हैं एड्स के लिए भी आने वाला टाइम में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान हो सकता है और हो सकता है कि इसी में कुछ इलाज करने के विकल्प भी आ जाए। तो कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जीन चिकित्सा हमारे जो है आने वाले जनरेशन के लिए जो है काफ़ी जो है वरदान सिद्ध भी हो सकता है। अगर बात करें जर्म लाइन जीन चिकित्सा वर्तमान व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। जनन कोशिकाओं के जो है जनीन द्रव्य प्रचलन के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित अभिलक्षण संविष्ट हो सकते हैं और इससे बच्चों में अकल्पनीय परिणाम उत्पन्न भी हो सकते हैं, जो हम कल्पना भी नहीं करेंगे ऐसे परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। और इस प्रकार जीन चिकित्सा वह केवल जोखिम भरा है बल्कि खर्चीला तकनीक भी है और काफ़ी समय लेने वाला भी है, जो केवल कुछ ही विकसित देशों में उपलब्ध है। तो कहते हैं दोस्तों ये चिकित्सा जो है काफ़ी महंगी है और काफ़ी जो है बहुत गंभीर भी हो सकती है, तो इसको जो है बहुत काफ़ी सोच विचार के ही उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए जीन चिकित्सा की कुछ निम्न सीमाएं होती है, तो इसमें कुछ सीमाएं दिया हुआ है। कहते हैं अनुवांशिक केवल कार्य कोशिका तक ही सीमित होती है और उपचारित जो है व्यक्ति अनुवांशिक परिकलन नई पीढ़ी में नहीं पहुंचा सकता। तो ये भी काफ़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बात करें हम दूसरी बात तो मानव जो है गुणसूत्रों में डीएनए में बाहर की अधिकृत संयोजनीकरण की संभावना हो सकती है, जिसके कारण एक सामान्य जीन सक्रिय व निष्क्रिय हो सकता है और इसके कारण या तो महत्वपूर्ण प्रकीर्णन की कमी से हो सकती है या कोशिका विभाजन अभी अनियंत्रित रूप से हो सकता है, जिसका कारण जो है कैंसरीय वृद्धि भी हो सकता है। बात करें यहाँ थर्ड की तो जो है जंतु परीक्षणों में योजनाबद्ध कार्य प्रणाली को और कड़े सुरक्षा जो है मानकों की अपमानता पड़ता है, यानी अपनाना पड़ना जरूरी है। कहते हैं जंतुओं परीक्षण में योजनाबद्ध कार्यक्रम को कड़े सुरक्षा मानकों को अपनाना भी पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी रहता है। लक्षित रोग वे ही होने चाहिए जिन्हें एकल जीनों में ही जो है कारक दोष सम्मिलित होते हैं और सामान्य जीन क्लोन जो है किए जाने चाहिए और अप्रत्यक्ष रोपण के लिए जो है ये काफ़ी उपलब्ध होने चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। और कहते हैं कि इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आगे के चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सूक्ष्म जीव के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे। आप इसी तरह त्रिपाणी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात जो हमेशा आपको बताया जाता है कि व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाना तो आपका फ़र्ज़ बन जाता है, तभी ये दूसरे बच्चों तक पहुँचे
पहुंचेगा, दूसरे बच्चे भी जो है जीन थेरेपी से अवगत हो पाएंगे और समझ सकेंगे कि आखिर जीन थेरेपी में इतना क्या कुछ था और क्या विषय थी। ठीक है, आप जितना मर्जी इंग्लिश में पढ़ लो, जितना मर्जी कर लो, आपको पल्ले नहीं सही से पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिंदी में समझ लेते हो तो वो आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो इसलिए जितना हो सके इसको व्हाट्सएप पे लगाइए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।